Assalamualaikum everyone. Thank you so much for joining us today. We have KhairKhwah and Goud collaborating to talk about contraception. And for this, we have Dr. Farrukh Zaman with us. Dr. Farrukh Zaman, how are you? I'm very well. Thank you. Thank you for inviting me to this meeting. Thank you so much for joining. So I'll give you guys a little bit of an introduction about what Goud does. So Goud is Pakistan's first and only pregnancy and parenting tracker app. So what we do is we give you support and medically accurate information for the first 42 weeks of your pregnancy, and then for the first year of the baby's life. We're giving you medically accurate information. We're giving you a space to talk to other moms about any questions that you may have, and we're giving you events that we do on a weekly basis where you're able to come together with other families and form genuine connections at these events. So, Dr. Farrukh Zaman, can you tell us a little bit about yourself and what do you do? Well, I am a gynecologist and obstetrician. I was a teacher also. I joined as assistant professor of obstetrics and gynecology in 1981 at King Edward Medical College, and then I was associate professor and then professor at Services Hospital and Allama Iqbal Medical College. I retired in 2009 as principal of Postgraduate Institute, Medical Institute, Lahore. And after that, I was for 8 years principal of Rashid Latif Medical College here in Lahore. And these days, I work for a medical college as well as I have my private practice at Hamid Latif Hospital, Lahore. My interest, of course, because of the specialty, essentially is mother's health and women's well-being and women's health. Maternal health is a wide subject. It is not only confined to pregnancy. It relates to the period before pregnancy, during pregnancy, and afterwards. And women's health, I'd like to divide that into various categories. One is girl child. As a matter of fact, a child who is still unborn, a girl, baby in the mother's womb. And then young girl, then adolescence. Adolescence is also a very sensitive period in a woman's life. And then teens, then the reproductive years, which are from generally, roughly speaking, from 15 to 45 years of age. And now with the age getting longer and because of the longevity, we would consider that about 30% of a woman's life is after menopause, which is between 45 and 55. And it's important, I'd like to mention here, is that there is that period. Menopause is not something which happens suddenly. Only in few it happens like that. Otherwise, it is spread over a few years, maybe 5 to 7 or 10 years. And that period is known as perimenopause. And for many women, that's the period during which they have the opportunity physically to acclimatize to the changing milieu of hormones and the other things. So that is it. And each of these periods, from girl child to adolescence to teens to reproductive years and menopause, they have their own issues, and which are many of which during the reproductive years are associated and related to the pregnancy and whatever happens before and after pregnancy also. So, and in addition to that, women have their own peculiar, they are human beings, Homo sapien, but women are a varied kind of, I wouldn't call it species, but women have a very important, their physiology, their response to many things and their needs and their requirements and sensitivities, they're quite varied. And it's important that women as well as men realize that. Perhaps it's more important for men to realize those variations and be sensitive to them. Definitely. So today we're going to be talking about contraception and why it's so important in a woman's life and in her reproductive years. Can you tell us what exactly is family planning and why do you think it's important?
Well, before Misha, I talk about the family planning in or the need of that in a single woman's life. I would like to say a little bit about the Pakistan scenario of family planning. Absolutely. Unfortunately, in Pakistan, contraception, family planning is something which appeared to be a taboo subject. We don't talk about it. We don't talk about it openly, and which is kind of putting our heads into sand. That is not the correct approach, and that is not being good Muslims. There are much better Muslims than us in the world, and they talk about and they practice contraception and family planning. It is not all something which is against religion. That's important. One. And because of that, you see, our country is facing huge amounts of problems. But one major problem is the exponential increase in population of this country. As a result of which, all our resources are overtaxed. If you look at geography of Pakistan, we are endowed with the nature's blessings in each and every respect. If you look at the country from north to south, you see what kind of terrain we do not have. We have every kind of terrain. We have not arguably, definitely the best irrigation system in the world. We have very fertile arable land, and still we import our food. The resources, one thing is that we are not utilizing our resources, and secondly, we are overtaxing it. Because of that, you see, it's a kind of, one feels embarrassed and ashamed at looking at some of the figures that we have, that a sizable population of our young generation is stunted in growth. They do not have enough of micronutrients and all those things, and on top of that, we do not have education for a great number of them. And gradually, what we are developing into is a complete mess, a disaster. As a matter of fact, we are not, I wouldn't say that we are a disaster in the making. We have achieved that, very unfavorable kind of distinction. Now, contraception is something which is, it doesn't mean that the family size of a particular couple should be restricted. It's entirely, absolutely up to them if they want to have one child or if they want to have 12 children. It's entirely up to them. It is the responsibility of the state and the associated professionals like me, and the healthcare professionals, media, others, to inform the public and informed amongst the public, those couples, about the various options which are available to them, and essentially to plan their family. As the name goes, family planning. You see, family planning is not synonymous with restricting the number of children or restricting the number of family members. It is about planning a family in the sense that the number of people that there would be in, that should be according to the wishes of the people, according to the wishes of the couple. Now, for that, there are various means to achieve that. And it is important that the couples should be aware of that. And then, as in our religion also, it is said that वो जो उर्दू में हम कहते हैं ना कि अपनी चादर देख के पाँव फैलाओ, तो वो वाली बात भी है, तो उसको देखते हुए, so we need to educate them, we need to make them aware of that, number one, and number two, also of how can that be achieved, how can that be done. It is quite simple. And then making those various methods available.
because they do not, and then because that contributes to women's health. Yeah. So family planning has various components. One is, say, birth spacing, so that there is adequate period between two pregnancies and births, during which the woman can recoup her health, and she is strong enough to bear another child, and also look after the child who has been born previously. So bearing children and having responsibility about for them, to provide them adequate clothing, to provide them education and adequate amount of food, that's also essential. Now, what is the use of having a family if it's, whether someone is educated or uneducated, irrespective of that, human instinct is to reproduce. Now, when the family, there is an addition to the family, it's a source of joy and happiness for the couple, for the parents. But if that child is unwell, sick, and the growth of the child is compromised, it doesn't get education, it doesn't get employment, and it's difficult to clothe and feed the person or the child, then that becomes a problem. Yep. Why is it that and we do not have paucity of talent? If you just look at the fast bowlers in Pakistan cricket team, there are a couple of them, they are banned for whatever reason, or they are out of action, and you have another crop of fast bowlers, and it's a different matter whether how we train them, etc. But there is no dearth of talent, and it's not only in cricket and fast bowlers. It would be there in every field. It would be there in other sports. It would be there in literature. It would be there in science, biological and other sciences. And why not? There would be. But most of them, they do not get the opportunity. They do not get that education. And therefore, it is important that at least we should be able to provide for them. And if we look within this region of South Asia, Pakistan is faring rather badly. Pakistan is not only faring badly, it is at the bottom of the list at all those indices which would indicate health, which denote well-being, education, health, and all the associated factors, because our fertility rate is so high that we double our population in a matter of 25 years. If you look at the population of this part, because it was Pakistan as it is now in 1969, the population was about 50 million. And it more than doubled in 25 years in 1994. And it further doubled of that by 2019. So every 25 years, we double the population. Are we providing that much in housing, in education, in employment, in other things? Are they also doubling at the same rate? And I tend to compare our indices with those of Bangladesh. Bangladesh, when it came into being in 1971, got separated from Pakistan. Its population was more than this part of Pakistan. In 1986, we were equal. We increased in our population and we became as much as Bangladeshis numbered at that time. And now Bangladesh's population is 60 million less than Pakistan. 60 million. 6 crore kam hai humse. And the other indices, economic indices, are there to show what has happened. And so it is important. Family planning is important from not only one angle, from many angles and from many points of view.
And again, I would emphasize that we have all failed in that. I will give major portion of that blame to the state, and but to a great extent also to the professionals and the media and everyone who are involved in that. We have, in my opinion, brought to ourselves that kind of complacency that we do not want to address this issue at all. Yeah, definitely. And I think contraception and family planning gives you the power over your own life and gives you the chance to give your children the best life possible, as you're able to give your all to each and every single one of them. So then, अगर हम ये बात करते हैं कि आपके पास कोई न्यूली मैरिड कपल आता है और वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं अपनी कॉन्ट्रसेप्शन की ऑप्शंस क्या हैं पाकिस्तान में अवेलेबल, कौन सी टाइप्स हैं जो आप उनको सजेस्ट करेंगे? ये देखिए कि जितनी भी मुख्तलिफ अक़साम हैं कॉन्ट्रसेप्शन की, वो सारी ही अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो एक ऑब्सेशन है विद इन द फैमिलीज कि अगर एक नौब्याहता शादीशुदा जोड़ा है कि वो अभी महीना गुजरे ना तो और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो जाए, वो बड़ा आम तौर पे अगर मेरे पास और बाकी गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं कि तीसरे चौथे महीने में ही वो चले जाते हैं कि जी अभी तक खुशखबरी नहीं आई। वेयर एज अगर मेरा बस चले तो मैं उनको एजुकेट करना चाहूँगा कि अगर एक यंग कपल है तो उनको कुछ टाइम गुजारना चाहिए इकट्ठा, वो एक दूसरे को समझें, एक दूसरे से उनकी वो वाकफियत हो, they get to know each other very well, they enjoy that time together being young couple, वो जाएं सैर करें, जो भी है वो वक्त गुजारें इकट्ठा। क्योंकि कई दफा ऐसे होता है कि कुछ मसाइल भी उस शुरू के दिनों में होते हैं, और मैं लड़कियों को खास तौर पे इसलिए एडवाइस करता हूँ कि आप पहले 1-2 साल आपको प्रेगनेंसी जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, so that you are sure you are settled in that life, and then because after you have had a child then the options become limited। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ कि अगर उसका गुजारा नहीं हो रहा और उसने सेपरेशन करनी तो वक्त पे कर ले। आई एम नॉट एडवोकेटिंग सेपरेशन, मैं उसको बड़ा करके बता रहा हूँ कि अगर उसका गुजारा, अच्छी भली मैंने PhD लड़कियां देखी हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां जो मजबूर हो जाती हैं फिर, और उस मजबूरी की वजह से वो उनका पूरी जिंदगी जो है वो मसाइल में घिर जाती है। उस PhD लड़की का क्या कसूर है कि वो यहाँ बैठ के सिर्फ रोटियां पकाती रहे और उसका खामन जो है वो या दुबई में बैठा है या स्पेन में बैठा है और वहां पे वो जॉब कर रहा है, और साल में वो 1 महीने के लिए आता है और ये समझा जाता है कि वो उसी महीने में प्रेग्नेंट हो जाए। ये जानने की जरूरत है कि किसी भी 1 महीने में किसी लड़की का अगर मियाँ बीवी दोनों बिल्कुल नॉर्मल हों, इकट्ठे रहें, तो उनका प्रेगनेंसी अचीव करने का इम्कान सिर्फ 15% के करीब है। ये इम्पोर्टेंट है जानना। उसमें से कुछ होते हैं जाहिर है जो पहले महीने में प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो लगता है कौन कहते जी पहले होगी, हमारे तो अभी साल हो गया प्रेगनेंसी नहीं हुई। किसी भी मुहज्जब मुल्क में, मैं ये नहीं कह रहा कि हम मुहज्जब नहीं हैं, लेकिन जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे 1.5 साल तक तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती इस मामले के लिए। तो देयरफॉर वो जो चीज़ है उसकी ज़रूरत है, नंबर 1। लेकिन अब आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जो माने हमल गोलियां हैं वो अवेलेबल हैं, जो कि सिंपल फॉर्म है। वो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती हैं वो अवेलेबल है, जो कि मेरे ख्याल में नौब्याहता लड़की के लिए वो सूटेबल नहीं होगी। आई वुड रादर गो फॉर दैट। जो हस्बैंड के इस्तेमाल करने के लिए कॉन्डोम्स हैं, और लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव लार्क्स बोलते हैं, जिसमें एक कॉइल भी आती है और एक वो इम्प्लांट्स हैं वो भी आते हैं। सो खाने वाली गोलियां हैं, कॉन्डोम्स हैं, और वो है, और इस तरह से ये सारी चीजें फ्रीली अवेलेबल हैं। और बल्कि रिसेंटली एक मेडिकल स्टोर पे गया, वहां पे कोई चीज लेनी थी तो उनके काउंटर पे बहुत सारा
वो एक वैरायटी ऑफ थी, ये जो मर्दों के इस्तेमाल के लिए कॉन्डोम्स होते हैं। तो मैंने उनसे बल्कि पूछा कि ये इतनी सारी वैरायटी आपने बाहर इस तरह से लगा के रखी हुई है, तो इसकी कितनी डिमांड है, बिकॉज आई वाज इंटरेस्टेड इन दैट। तो वो रीजनेबल थी, लेकिन जितनी होनी चाहिए वैसे नहीं है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ स्टेटिस्टिक्स हुए और मतलब स्टडीज हुई, और उनमें से जिस तरह से देखा गया कि जो हमारे इस वक्त जो है तकरीबन 32% कपल्स जो हैं वो जिनको ज़रूरत है सिर्फ उनमें से 32% करते हैं, विच मीन्स के 68% जिनको ज़रूरत है वो ये इस्तेमाल नहीं करते। और फिर उस और भी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि उनमें से ज्यादा लोग जो हैं उनको इस चीज की आगाही है, वो जानते हैं कि ये एक नई चीज सामने आई है। अब एक तो ये है ना कि पहले तो था कि जी अवेयरनेस नहीं है, एक्सेस नहीं, इश्यूज ऑफ एक्सेस एंड अवेयरनेस थे। अब वो भी नहीं है, पता भी है, लेकिन या उनकी अपनी लापरवाही है या उनकी अपनी वो बायसेस हैं और उनके बारे में मिथ्स हैं जो जहन में हैं, जिसकी वजह से वो इस्तेमाल नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर मैं माने हमल गोलियों की बात करता हूँ, ये मोटा नहीं करती। जो हार्मोन्स नॉर्मली किसी लड़की के सर्कुलेशन में एक महीने में होते हैं, उतार चढ़ाव होता है, ये माने हमल गोलियां उनको उतार चढ़ाव की बजाय एक स्टैंडर्ड डोज में उनको कंटिन्यूसली देते हैं, जिसकी वजह से वो जो एग बन के डेवलप होके रिलीज होना है वो नहीं होता। ये उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब मिकदार उस हार्मोन्स की लोएस्ट होती है जितनी के उसके लिए चाहिए, और वो उतनी मिकदार हार्मोन्स की नॉर्मली भी किसी भी लड़की में जो 15 से 45 साल की हैं तो उसमें वो होती है। हाँ, अलबत्ता जब शुरू में ये हार्मोन्स वाली टैबलेट्स इस्तेमाल की जाती हैं तो उनकी वजह से थोड़ी वाटर रिटेंशन हो सकती है पहले 2-3 महीनों में, जो कि जिसकी वजह से 2 से 3 पाउंड वजन में तब्दीली आ सकती है, बढ़ सकता है। लेकिन अगर उसका इस्तेमाल बरकरार रखा जाए गोलियों का, तो जिस्म जो है वो उसके मुताबिक ढल जाता है, और वो जो 2-3 पाउंड का वजन बढ़ा हुआ होता है वो भी खत्म हो जाता है। और दूसरी बात कि ये गोलियां जो हैं ये लंबे अरसे तक इस्तेमाल की जा सकती हैं। वो ये उन और आइंदा की उनकी फर्टिलिटी पे या प्रेगनेंसी होने के इम्कानात पे कोई कमी नहीं आती। फिर उनके दूसरे फवायद और भी हैं। आजकल एक और चीज बड़ी कॉमन है, एंडोमेट्रियोसिस। Every 10th girl, 1 in 10 girls has likelihood of developing endometriosis, which is a painful condition, which is जिसका इलाज जो है वो वक्ती और अल्टीमेटली उसके लिए मेजर सर्जरी करना पड़ती है। अगर ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इस्तेमाल की हो तो वो एंडोमेट्रियोसिस के डेवलप होने के इम्कानात को भी बहुत कम करती है। पीरियड्स की रेगुलरिटी रहती है। ये यूट्रस और उसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑर्गन्स हैं उनकी सेहत को भी अच्छा रखती है, उनके लिए मुफीद है। ये इतने सारे फवायद है इसके। और नुकसान जो है एसेंशियली अभी तक अगर नुकसान वाली बात होती तो ये जिस तरह से अमेरिका है या दूसरे ममालिक हैं वहां पे ओवर द काउंटर ना होती, इसके लिए ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ली जा सकती है। ठीक है। तो फिर ये जो हार्मोनल एंड नॉन हार्मोनल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होती हैं, आप what would you say is when are they most applicable? So जैसे contraceptive pill, copper coil, IUD, NUDs ये कब बेस्ट होती हैं? देखिए, मेरी तो बात ये है कि ये जिस तरह से मैंने कहा ये भी तय है कि जैसे हमें ग़िज़ा में हर किसी को अंडा या दूध या गोश्त या सब्जियां सब एक जैसे पसंद नहीं है। किसी को सब्जी पसंद है, किसी को गोश्त पसंद है, किसी कोई अंडा खा सकता है, कोई नहीं खा सकता, कोई दूध पीता है, नहीं पीता, और वो सारी चीजें नॉर्मल हैं इस तरह से। इसी तरह से इन चीजों के बारे में भी ये जरूरी नहीं है कि हर लड़की को या हर कपल की पसंद के मुताबिक हो, नंबर एक। नंबर कोई भी मेथड ऐसा नहीं है, ऐसा आइडियल मेथड भी तक नहीं है, या उनके लिए ये कोई उन जैसे दूध से एलर्जी हो सकती है, अब तो जैसे व्हीट से एलर्जी है, रोटी भी नहीं खा सकती, कई लोग नहीं खा सकते। सो देयरफॉर उस तरह की जो चीजें हैं कि उनको जो सूट ना करे तो वो तो
हर किसी, सो देयरफॉर देयर इज दिस वाइड एरे। इवन अगर गोलियां भी हैं, जो खाने वाली हार्मोनल गोलियां भी हैं, उनमें भी मुख्तलिफ प्रेपरेशन हैं। जिस तरह से अगर आपने एंटीबायोटिक एक लेना, एक से आप एलर्जिक हो तो आप दूसरा ले लेते हो, सो गोलियां भी खानी है तो एक अगर आपको सूट नहीं करता, एक हार्मोनल प्रेपरेशन नहीं सूट करता, तो दूसरी हार्मोनल प्रेपरेशन। दूसरी बात यह है, जिस तरह से आपने कहा कि ये और भी है, वो कॉयल है कॉन्ट्रासेप्टिव, आईयूसी। अब आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, एक्चुअली आईयूसीडी उसको बोलते हैं। तो ये दो किस्म की अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। एक है जिसको कॉपर टी बोलते हैं, वो एक किस्म की इनर्ट है। कॉपर तो उसमें है लेकिन इनर्ट है, कि उसका कोई फार्माकोलॉजिकल, कोई उसका मेडिकल इफेक्ट नहीं है। हाँ, अलबत्ता कुछ लड़कियों में ये हो सकता है कि उसकी वजह से पीरियड्स की मिकदार या दिन थोड़े से बढ़ जाएं, लेकिन वो भी आमतौर पे वो उससे आदी हो जाते हैं और वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट हो इनमें से किसी भी चीज का जो कि अनएक्सेप्टेबल है, तो उसको रोका जा सकता है, उसको रिमूव किया जा सकता है, इस तरह से। और एक है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, उसको मेरीना बोलते हैं, लीवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम, LNGIUS। अब ये वाला जो है, ये हम आजकल उसको थेराप्यूटिकली इस्तेमाल करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के बजाय। उन खवातीन में जो 35-40 साल या इवन 50 साल की होती हैं और उनमें एबनॉर्मल ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग वाली बात हो, तो वो उनमें भी फायदामंद होती है। सो उसका फायदा ये है। और आजकल एक और चीज है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज बड़ी कॉमन है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज मैं उसको बीमारी नहीं समझता, क्योंकि 15 से 20% पॉपुलेशन में जो चीज हो वो एबनॉर्मल नहीं, मैं उसको नॉर्मल का वेरिएंट समझता हूँ। लेकिन उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, उसको मैनेज किया जाता है। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनको कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत हो, उनके लिए मेरीना, वो जो हार्मोन वाली कॉइल है, दैट इज एक्सीलेंट। वो इसलिए कि एक तो वो प्रेगनेंसी को रोकती है, और दूसरा उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से यूट्रस के ऊपर जो असरात होते हैं, जिनमें से एक ये है कि अल्टीमेटली दीज गर्ल्स आर मोर लाइकली टू डेवलप कैंसर ऑफ द यूट्रस कंपेयर टू द जनरल पॉपुलेशन। तो मेरीना कॉइल जो है वो उस चीज में मदद देती है, और उसकी वजह से वो उस कैंसर का इंसिडेंस जो है वो कम हो जाता है। सो उसके इस किस्म के फवायद भी हैं। सो और फिर कॉन्डोम्स है जो नॉन हार्मोनल है, उसमें ये डिवाइस है, इंट्रायूट्राइन कॉपर वाली डिवाइस है। कॉन्डोम्स है, कॉन्डोम्स का जो है उसका फेलियर रेट कंपैरेटिवली ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, जो एक सो कॉल्ड फिजियोलॉजिकल मेथड बोलते हैं, अगर आप ये देखो ना, हमारे यहाँ मसला ये है कि जो 30-32% कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट है, उसमें से 9% जो है वो तो है ये फिजियोलॉजिकल मेथड्स में, जिसमें कोई दवाई, कोई वो नहीं इस्तेमाल की जा सकती, और जो हाईली अनरिलायबल हैं, जिसका फेलियर रेट काफी ज्यादा है। और जो बाकी बच गए हैं, कोई वो जो परसेंटेज बाकी बचती है, उसमें भी आगे जो ज्यादा इफेक्टिव मेथड्स हैं, वो उनकी परसेंटेज 2%, 4%, 3% है, और ज्यादा कॉन्डोम्स के ऊपर है। लेकिन ये चीजें अवेलेबल हैं, और उनको उसके बारे में बेस्ट ये होगा कि कपल्स को चाहिए कि वो अपने नज़दीकी डॉक्टर या ये फैमिली प्लानिंग सेंटर जो उनके नज़दीकी कहीं ना कहीं होगा, उनसे जाके डिस्कस करें, और अपनी मर्जी और अपनी तबीयत के मुताबिक जो उनको चीज़ जिस तरह से हो वो डिस्कस करें। वो ज़रूर अपनी जितनी उनकी इनके बारे में सुनी सुनाई बातें हैं उनके जाके बात करें, और उस चीज़ का जो उनके ख्यालात में ऐसे हैं, वहम हैं, वो उनको निकालें, और फिर उसके मुताबिक वो चूज करें। तो फिर आपने अभी जो फिजियोलॉजिकल वेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की बात की है, ये इफेक्टिव क्यों नहीं? वो इफेक्टिव इसलिए नहीं है कि वो रिलायबिलिटी उनकी कम है, जो फिजियोलॉजिकल मेथड्स हैं, कि वो उसमें वो समझा जाता है कि शायद ये कुछ उसको एक विथड्रॉल मेथड है। विथड्रॉल मेथड में जो है देयर इज ऑलवेज लाइकलीहुड कि कुछ स्पर्म्स जो हैं दे ऑलवेज विल गेट एक्सेस टू द एग, और वो उसमें उस तरह से हो जाएंगे। वो एक जो कॉमनली और अच्छे पढ़े लिखे लोग भी मैंने देखा है कि वो जिनको बेहतर मालूम होना चाहिए इस चीज के बारे में, तो वो भी उनको भी मसाइल का सामना होता है इसमें। तो जो बाकी है उनकी इफेक्टिवनेस रेट क्या है?
उनका इफेक्टिवनेस जैसे पिल है, वो रोज की अगर एक पिल खाई जाए, अब पिल है, इंजेक्शन एक लगा लें, 1 महीने वाला इंजेक्शन है, एक 3 महीने वाला इंजेक्शन है, उनकी इफेक्टिवनेस दैट अप्रोचेस मोर देन 99%। तो वो उस लिहाज से बड़े इफेक्टिव है। और जो बाकी आईयूडी और कॉपर की है जो ये हार्मोनल। उनमें भी ये जितने ये है सो कॉल्ड फार्माकोलॉजिकल मेथड्स हैं, वो सब की जो एफिकेसी है और सक्सेस रेट जो है वो 99% तक चला जाता है। ठीक है। सो हमें एक और सवाल आया था कि हाउ लॉन्ग इज इट सेफ टू बी ऑन बर्थ कंट्रोल? एज लॉन्ग एज वन वुड विश। हम्म। जैसे ये मैंने इंजेक्शन की बात की, वो जो हर 3 महीने बाद लगाया जाता है, वो हमारी एक वर्कशॉप थी आज से काफ़ी साल पहले थाईलैंड में, मैं उसमें गया तो वहाँ पे ये काफ़ी कॉमन था ये इंजेक्शन। एंड वहाँ पे ख़वातीन ऐसी थी जो 12-12 साल से उन्होंने मसलसल वो इंजेक्शन लगवा रही थी। हम्म। और एक और बात है कि इसमें से जैसे इंजेक्शन है या इम्प्लांट है या मेरीना है, उससे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी कम हो जाती है, और अनीमिया जो है वो खून की कमी लड़कियों में जो है वो और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कम होना जो है वो बीमारी नहीं होती। हम्म। हमारे यहाँ आम तस्वर पाया जाता है कि पीरियड्स के दौरान खुल के ब्लीडिंग होना, 7 दिन ब्लीडिंग होना, ऐसा नहीं है। हम्म। ये कुदरत की तरफ से कोई फिल्टर नहीं है यूट्रस के जिसमें से सारी इम्प्योरिटीज निकल के तो बाहर चली जाएंगी, ऐसा नहीं है। अगर और नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल लॉस है उसकी मिकदार जो है वो 5 मिलीलीटर से लेके 80 मिलीलीटर तक है। सो हम्म। 5 मिलीलीटर इज जस्ट अ टीस्पून विच या। वुड जस्ट स्टेन पैड, which means that अगर उतना है तो वो भी नॉर्मल है। वो जनरली एक गायनेकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक किताब में बड़ा अरसा पहले लिखा था, इट डज नॉट मैटर वेदर यू ब्लीड फॉर हाफ अ वीक, हाफ अ डे और हाफ एन आवर। सो वो वाली बात है कि उसमें जो है उसके बारे में अगर ये मैं उसको एक फायदा गिनता हूँ उन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का जिसमें ब्लीडिंग कम हो जाती है। ठीक है। तो कौन से कॉन्ट्रसेप्शन मेथड्स होते हैं जिसमें यू स्टिल गेट द पीरियड? और पीरियड ये में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो विद हाँ, बर्थ कंट्रोल वो है आपको वो है। विथड्रॉल। ये देखिए जो जो जिन मैंने जिक्र किया है, जिस तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हैं उसमें पीरियड्स होते हैं, कॉपर टी है उसमें पीरियड्स होते हैं, ठीक है। इंजेक्शंस में उसमें कम ब्लीडिंग होती है, इम्प्लांट्स में कम ब्लीडिंग होती है, हम्म। और शुरू शुरू में कभी कभार थोड़ी सी बेकायदा भी हो जाती है। तो लेकिन और जो दूसरे कन्वेंशनल जिस तरह से कॉन्डोम्स हैं उनमें उस पे तो पीरियड्स के असर ही कोई नहीं। फीमेल कॉन्डोम्स भी होते हैं, सिर्फ मेल कॉन्डोम्स नहीं है, हम्म। फीमेल कॉन्डोम्स वो भी अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा पैचेस, रिंग्स एक्सेट्रा, वो ऐसी चीजें हैं जो जो हमारे यहाँ कुछ उनमें से अवेलेबल नहीं है, और हम्म। कुछ जो जरा टीडियस हैं इस्तेमाल करने में। ठीक है। ठीक। सो नेक्स्ट हमें एक क्वेश्चन आया था कि डज बीइंग ऑन कॉन्ट्रसेप्टिव्स मेक गेटिंग प्रेग्नेंट हार्डर आफ्टर यू लीव नो, them? no, not really. As soon as the duration of the effect of the contraceptive is over, हम्म। the fertility comes back. As a matter of fact, ये contraceptive pill जो है कुछ ऐसे केसेस में जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, हम्म। पीसीओ जिसको, उसमें हम ये देते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। वो हम्म। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है 3 महीने के लिए दे के उसके बाद अगर वो ओवुलेशन इंडक्शन की जाए तो वो रिबाउंड फिनोमेना से वो बल्कि बेहतर होता है। हम्म। सो सर्टन केसेस आई वुड से कि वो जो है उसका वो बेहतर असर होता है, उसका फायदा होता है। और कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं होते इनके? लॉन्ग टर्म ऐसे कोई नहीं है। ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म कोई ऐसा हो, हाँ, ये है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है मैं जाती तौर पे 40 साल की उम्र के बाद की खवातीन को नहीं दूंगा। हम्म। उसमें क्योंकि एक कंपोनेंट होता है ईस्ट्रोजन, हम्म। वो उसकी वजह से वो हमारे जो इस मुल्क में जैसे कुछ बीमारियां मुख्तलिफ रेसेस में या मुख्तलिफ इलाकों में कुछ उनका ज़्यादा होता है इंसिडेंट्स, तो थ्रम्बो एम्बोलिज्म के ब्लड क्लॉट हो जाना और इस तरह से होना, वो वेस्ट में ज़्यादा है, हमारे यहाँ कम है, लेकिन हमारे यहाँ भी हो सकता है। सो देयरफॉर मैं तो मेरा ज़ाती तौर पे हार्ड एंड फास्ट रूल एक किस्म का है कि मैं 40 साल से ऊपर वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, उसको ओसीपी बोलते हैं, ओरल कंबाइंड पिल। हम्म। एक होती है सिर्फ प्रोजेस्टेरोन पिल,
सिर्फ उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, वो दी जा सकती है, वो दैट कैन बी कंटिन्यूड आफ्टरवर्ड्स। इसी तरह से मेरिना दी जा सकती है, इंजेक्शंस दिए जा सकते हैं, वो जारी रह सकते हैं। ठीक है। और कोई ऐसे तरीका होता है जिससे हमें पता चले कि ये बर्थ कंट्रोल जो मैं ले रही हूँ वो मुझे सूट कर रही है या नहीं, या कौन से ऐसे साइंस वो होंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमें नहीं सूट कर रही? वो देखिए, बात यह है कि किसी भी दवाई से, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि साइड इफेक्ट कोई हो सकता है, कोई जो एलर्जी हो गई, हम्म। या किसी दवाई लेने से नौजिया हो गया, हम्म। या वो जो लड़कियां जैसे मिग्रेन जिनको है, मिग्रेन वाली जो है उनके लिए भी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें ईस्ट्रोजेनिक कंपोनेंट जो है वो समटाइम्स इट स्टिमुलेट्स मिग्रेन। तो हम्म। वो वाली चीज है, वो सारी चीजों को देखते हुए, या ब्लड प्रेशर किसी का ज्यादा है उसके लिए वो सूटेबल नहीं होंगे, उसके लिए दूसरा सूटेबल होगा। लेकिन ये तो मैंने कहा ना कि कुछ जो है, जो इंडिकेशन कंट्रा इंडिकेशन है। लेकिन जो नहीं, अगर लेट्स से कि वो पिल लेते हैं, तो पिल लेने से अगर नौजिया होता है, और वो नौजिया कुछ अरसे बाद, हफ्ता 10 दिन में अगर नहीं होता, और इस तरह से भी ठीक नहीं होता कि आप खाने के बाद उसको लें, तो फिर उसको अवॉइड कर लें, फिर दूसरा तरीका इस्तेमाल कर लें। और जब भी कोई ऐसा हो, अगर लेट्स से कि जिस तरह से वो इम्प्लांट्स हैं या इंजेक्शंस हैं, उनसे मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी अगर इस तरह से अपसेट हो, विच इज अनएक्सेप्टेबल टू द पर्सन। ठीक है। तो अभी हमने शुरू में फैमिली प्लानिंग और फैमिली स्पेसिंग की बात की थी। व्हाट डू यू थिंक इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू स्पेस बिटवीन चिल्ड्रन? जनरली यू सी, बात यह है कि आप यूं देखो, मैं उसकी मिसाल दूंगा कि जब प्रेगनेंसी होती है तो लड़की का वजन बढ़ता है, और वो आमतौर पे एवरेज जो वेट गेन है वो 25 से 30 पाउंड वजन बढ़ता है। अब जो है, और कुछ लड़कियां जो हैं, जहां हमारे यहाँ वो एक चला आ रहा है कि ज्यादा खाओ तो बच्चा सेहतमंद होगा, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी मोटापे को सेहतमंदी की निशानी समझा जाता है। तो कुछ लड़कियां ज्यादा भी वजन कर लेती हैं। मैं तो जनरली एडवाइस करता हूँ कि जी, वजन आपने सिर्फ एक बंदे का खाना है, दो का नहीं खाना, वगैरह वगैरह इस तरह से। सो वो ये तब्दीली, और फिर जो फिजियोलॉजिकल तब्दीलियां सारे जिस्म में आती हैं। प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज है जिस्म में कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है, कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो उससे मुतासिर ना होता हो। चाहे वो हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, लंग्स हैं, मैदा है, मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, दिमाग है, नाक कान गला वगैरह वगैरह, सारी चीजें जो हैं, हर जो जिस्म का निज़ाम है वो उससे मुतासिर होता है या उससे अफेक्ट होता है। और अगर वो प्रेगनेंसी का हिस्सा ना हो तो अच्छी खासी बीमारी का मतलब बात बन जाती है। तो वो चीजें जो है सारी फिर नॉर्मल पे वापस आने में, और फिर उनको वक्त लगता है प्री प्रेगनेंसी लेवल तक जाने में। फिर दूसरी बात यह है कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ का जो ये तब्दीलियां आती हैं, उसमें बच्चे ने जो जो भी ग़िज़ाइयत लेनी है वो माँ से लेनी है। जो उसके अपने अंदर बच्चे का खून बनना है, उसकी आयरन जो है वो भी माँ से जानी है। तो आयरन की कमी होना, और इस तरह की दूसरी विटामिन्स की, कैल्शियम की, बाकी हर चीजों की जरूरत पड़ती है, तो वो कमी भी होती है। आमतौर पे जो एक मामूल की ग़िज़ा है वो सारी चीज़ों को उस तरह से फराहम नहीं करती जितना कि ज़रूरत होती है, और इसलिए हम प्रेगनेंसी में सप्लीमेंट्स देते हैं। लेकिन वो सप्लीमेंट्स अगर आप अंदाज़ा लगाओ कि पाकिस्तान की कितनी पॉपुलेशन को मैसर होते होंगे और कितने को लेते होंगे जिनको खाना प्रॉपरली नहीं मिलता। अब हम ये उस पे कर रहे हैं कि जब खाना उनको एक एतदाल के साथ, और उनको एक बैलेंस्ड डाइट जो है वो मिल रही होगी, जिसमें प्रोटीन भी होगी, फैट भी होगी, कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, फल भी होंगे, सब्जियां भी होंगी, वगैरह वगैरह। अब कुछ हम में से डॉक्टर हैं जो लिख देते हैं कि फल, दूध, सब्जियां, गोश्त और अंडे का कसरत से इस्तेमाल करें। अब ये सारी चीजें, ये जुल्म है लिख देना किसी के साथ, क्योंकि सबको ये मुयसर नहीं है। तो अगर वो हो और उसके ऊपर फिर सप्लीमेंट्स, तो तब जाके बात बनती है। जब ये सारा कुछ नहीं होता तो फिर उसकी कमी भी होती है। और अब फिर कुछ ऐसा है कि जो डिलीवरी है या सिजेरियन सेक्शन है, उसके दौरान भी खून जाया होता है। तो उन सारी चीजों को कमी वो पूरा करने के लिए वो सिस्टम सारे जिनमें तब्दीलियां आती हैं,
प्रेगनेंसी के दौरान उनको वापस अपने बेसलाइन लेवल पे आने के लिए तो वक्त दरकार होता है। फिर ये भी आप ना भूलिए कि जिस वक्त बच्चा पैदा होता है तो माँ जो है वो उसके लिए काम दोहरा हो जाता है। एक बच्चे को पालना जो है वो पूरे घर का ख्याल रखने के बराबर की बात है। सो उसने घर का भी ख्याल करना है, खाना पकाना, कपड़े धोने, बाकी सारी चीजें वो सफाई वो करना, और साथ में बच्चे का ख्याल भी करना। और फिर वो उस दौरान में बहुत सारी लड़कियां जो हैं उनका अपना खाना पीना अधूरा रह जाता है। सो वो चीज करते हुए उनकी अपनी सेहत अभी बेसलाइन लेवल पे नहीं आई होती, तो दूसरी प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है, तो उसके लिए उनके ऊपर बहुत दबाव और बोझ हो जाता है, उनके जिस्म के लिए बड़ा वो हो जाता है। और मसल्स जो हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, पेट जो लूज हो जाता है, ढलक जाता है, और सारा वो जो वजन अभी अगर जो गेन किया हुआ है, एक्स्ट्रा अगर गेन कर लिया है, तो उससे अभी छुटकारा नहीं हासिल होता। मैं तो लड़कियों को जो जरा मुतवल घराने से होती हैं उनको मैं कहता हूँ कि तुम्हारी शादी के कपड़े जो है सारे जाया चले जाएंगे, इसलिए अपने वजन को जरा ख्याल करो। सो वो चीजें जो है वो वापस आने में और ठीक लेवल पे आने में वक्त लगता है। तो वो वक्त जो है आम तौर पे समझा जाता है कि जी साल भर तो वो अभी वापस ही नहीं आया, फिर साल भर जो है उसको जरा रिकूप करने में लगेगा, तो कम से कम 2 साल का वक्फा तो होना चाहिए। और फिर अगर माँ बच्चे को दूध भी पिला रही है तो उसका अपना वो असर होगा सेहत के ऊपर। सो देयर फोर कम से कम 2 साल का वक्फा। और दूसरी बात यह है कि ये ना समझा जाए कि औरत सिर्फ बच्चा बनाने की मशीन है, कि उसने बच्चे ही बनाते जाना है, ऐसी बात नहीं है। उस बच्चे को ख्याल करना, उसका उसको रेज करना, उसका वो करना, वो सारी चीज है। तो उसलिए कम से कम 2 साल का वक्फा तो होना चाहिए। और फिर वही बैलेंस्ड फैमिली जो है उसके मुताबिक वो चलें कि 2 या 3 बच्चे इस तरह से है वो एक साथ। फिर हमारे यहाँ ये भी हो जाता है, अगर किसी के 2 लड़कियां हो गई तो अब प्रेशर हो जाता है कि लड़का पैदा करो, तो वो लड़का पैदा करते करते 6 लड़कियां पैदा हो जाती हैं। सो इस किस्म की बातें वो तो एक अलग चीज है, लेकिन ये 2 से 3 साल का वक्फा कम से कम होना चाहिए। ठीक है। और अगर कोई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी हो जाए, इन द सेंस कि अगर आपको कुछ जो कॉन्ट्रासेप्टिव आप यूज कर रहे थे वो फेल हो जाए, पाकिस्तान में कोई इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल हैं और वो कौन से होते हाँ वो बड़ी हैं और वो कसरत से इस्तेमाल होता है। कॉन्ट्रसेप्शन का पता हो ना हो, इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्शन का पता होता है। हैं? तो वो कई दफा अभी अभी पूरी तरह से उसकी जरूरत भी नहीं होती, तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं, वो अवेलेबल हैं ठीक है। और ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, हर केमिस्ट के पास है। ठीक है। सो अब हमने जनरली तो काफी बात कर ली है, अब कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो हमें भेजे गए थे हम उनकी तरफ आ जाते हैं। तो हम्म। हमें हमें काफी लोगों ने बल्कि ये सवाल पूछा था कि डू यू रेकमेंड दैट न्यूली मैरिड वुमेन यूज कॉन्ट्रसेप्शन और इज इट बेस्ट टू नॉट यूज कॉन्ट्रसेप्टिव अंटिल वन बेबी इज बोर्न? मैं तो जिस तरह से मैंने बात जब शुरू ही की थी तो मैंने कहा था कि मेरी तो मेरा मशवरा ये होगा यंग कपल्स को। हाँ, अगर किसी की शादी जाके 35 साल की उम्र में लड़की की होती है तो उसमें इतना वो साल 2 साल का करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल जो प्रोफेशनल लड़कियां हैं जो आला तालीम हासिल करती हैं, फिर वो और जिस तरह से वो पीएचडी की तरफ चली जाती हैं या और है करियर बनाने में उनका वक्त लग जाता है, तो उस वक्त शादी होती है। तो उस वक्त उनके लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको ज्यादा देर इंतजार करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ प्रेगनेंसी के जो फ्रीक्वेंसी होने क्या है इम्कानात, वो जरा वो कंप्रोमाइज होना शुरू होते हैं। और उसके साथ ही मिस कैरेज रेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि एग्स जो होते हैं वो जो किसी लड़की की उम्र है, एग्स की उम्र भी उतनी, एग्स नए नहीं बनते। एग्स वो होते हैं जो वो अभी लड़की अपनी माँ के पेट में जब होती है और 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है उस वक्त सारे एग्स उसमें आ जाते हैं और वो ही वही रहते हैं। सो उनकी एज जो है वो उतनी होती है, और जब जैसे जैसे उनकी एज होती जाती है तो वो एग्स भी एक किस्म के, मैं वो इन्वर्टेड कॉमर्स में कहूंगा कि वो भी बूढ़े होते जाते हैं। तो उनकी कैपेसिटी टू गेट फर्टिलाइज्ड टू रिजल्ट इन अ प्रेगनेंसी वो भी कंप्रोमाइज होती है, एंड देन टू मेंटेन सस्टेन एंड कंटिन्यू दैट प्रेगनेंसी वो भी किसी हद तक कंप्रोमाइज होती है। सो वो वाली चीज के अलावा अगर अदरवाइज मैं कहूंगा कि हाँ जी 2 साल का वक्फा तो जरूर, 2 साल तो कंट्रासेप्शन करना चाहिए।
ठीक है. The next question was, is secondary infertility caused due to the use of hormonal contraceptives? नॉट रियली. जिस तरह से मैंने पहले कहा है कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं और या अदर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर्टिकुलरली, वो तो फर्टिलिटी को कंप्रोमाइज नहीं करते. जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है वो आमतौर पे एक तो ये है कि कोई प्राइमरी वजह हो, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, वो पहली प्रेगनेंसी हो गई, दूसरी उस तरह से. दूसरा ये होता है बसा औकात कि वो जो डिलीवरी होती है या सिजेरियन सेक्शन होता है, उसके दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसी हो गई होती है या इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने में मसला हो सकता है. ठीक है. लेकिन उसमें कॉन्ट्रासेप्शन नॉट रियली. हाँ, बड़ी दूर की लगाए अगर तो जो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है वो रखते हुए अगर एडिक्वेट स्टेरिलाइजेशन या जो एंटीसेप्टिक टेक्निक्स हैं उनको अगर ना इस्तेमाल किया जाए और उस वक्त उस आईयूसीडी के साथ कोई इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो जाती है यूट्रस के अंदर, तो वो एक अलग बात है. ठीक है. Can a coil lead to uterine rupture and internal bleeding? यूट्राइन रप्चर उसको हम नहीं बोलते. यूट्राइन रप्चर एक अलग सी टर्म होती है, उसको परफोरेशन बोलते हैं. अगर वो एहतियात जो कि एक रीजनेबल ट्रेनिंग के साथ हो जाती है, तो वो अगर एहतियात ना बरती जाए तो वो उसमें परफोरेट होने का इम्कान है. यूट्रस रफली इस तरह से ये जैसे ये इतना हाथ है ऐसे, उसमें अगर वो जो कॉयल है वो यहाँ से ऐसे रखी जाती है, तो द कॉयल कैन, अगर वो ऊपर से ऐसे निकल जाती है तो वो एक किस्म की उसको हम परफोरेशन बोलते हैं. वो उसी टाइम पे हो जाती है और आमतौर पे वो उसका एहसास हो जाता है रखने वाले को. और सिंपल तरीका है कि उसी वक्त अगर अल्ट्रासाउंड करके देख लिया जाए तो पता चल जाता है. वो थोड़ी सी ब्लीडिंग करती है और उसमें वेरियस अप्रोचेस हैं जिसके जरिए उसको फिर एड्रेस किया जा सकता है. ठीक है. Does a copper IUD make your period worse? इन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ वुमेन, यस. कुछ में तो कम भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ में वो उसका एसेंशियली होता है अ फॉरेन बॉडी, आई वुडंट से रिएक्शन, बिकॉज ऑफ दिस बीइंग अ फॉरेन बॉडी. पहली बात तो ये है कि यूट्रस में अगर रखी जाए तो यूट्रस का एक टेंडेंसी होती है टू पुश इट आउट. ये बॉडी में भी अगर यहाँ पे कोई आपके छोटा सा मामूली सी अगर वो कोई ऐसे कोई चीज फंस जाती है या आ जाती है स्किन में, तो स्किन भी उसको पुश आउट कर देती है. तो इसी तरह से यूट्रस के अंदर हो तो यूट्रस में वो स्पाज्मोडिक पेन भी हो सकता है इन इट्स अटेम्प्ट टू पुश इट आउट. तो वो इस तरह से होता है. दूसरा, बीइंग अ फॉरेन बॉडी, इट माइट इन सम गर्ल्स cause local irritation, which leads to excessive bleeding or more than usual bleeding at the time of periods. लेकिन मैंने जिस तरह से पहले कहा कि अगर उसको जारी रखा जाए तो 2-4 महीने में वो चीज़ सेटल हो जाती है. हाँ, उस वक्त भी ना सेटल हो और वो ब्लीडिंग का दौरानिया बढ़ जाए या उसकी मिकदार बढ़ जाए और बढ़ी ही रहे and adversely starts affecting the woman, then it should be removed. कुछ इस तरह से मैंने कहा कि कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो आइडियली सबके लिए सूटेबल होगा और बेस्ट होगा. ठीक है. अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेना शुरू करते हैं, उसकी कितनी देर बाद आर यू प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रेगनेंसी? अगर वो आमतौर पे ये एडवाइस किया जाता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जब शुरू करें तो पीरियड्स के पहले 5 दिनों में, जिस दिन पीरियड शुरू होते हैं वो पहला दिन होता है, विद इन 5 days अगर वो शुरू कर ली जाए तो वो उसी महीने से ही इफेक्टिव होना शुरू हो जाती है. कभी कभार ये भी होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दरमियान में भी दी जा सकती है, उससे साइकिल तो थोड़ा सा वो लंबा हो जाता है. और चूंकि समझाने में और समझ आने में वक्त लगता है, क्योंकि समझाने में तो इतना नहीं लगेगा, लेकिन वो जब किसी लड़की को कहा जाए कि जी आप ये लेंगे तो आपके पीरियड्स डिले हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे, तो वो एकदम से अलार्म बेल सी बजना शुरू हो जाती है. तो अगर पहले 5 दिनों में नहीं शुरू की, 10वें दिन या 15वें दिन शुरू की है, तो वो उस महीने में उसकी प्रोटेक्शन नहीं होगी. लेकिन की जा सकती है, शुरू की जा सकती है, सो दैट the routine gets established and then it may be continued through the next cycle, और अगले साइकिल से फिर वो नॉर्मल उस तरह से होगा, प्रोटेक्शन होगी. ठीक है. And if I miss the pill one day, तो उससे क्या हाँ, फर्क ये पड़ेगा? बड़ा इम्पोर्टेंट.
अच्छा सवाल किया। जब पिल लेना होती है तो उसके साथ ये एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये दी जाती हैं, समझाई जाती हैं कि पिल के ये 24 घंटे का वक्फा होता है उसका, क्योंकि दिन में एक लेनी है। तो वो रोजाना एक ही वक्त मुकर्रर किया जाए। ये नहीं है कि 8:05 ही रोजाना रोजाना हो, जिसका मतलब है कि सुबह दोपहर शाम जिस वक्त भी आप वो लेना शुरू करते हो तो वो आप एक पिल रोजाना उसी टाइम पे लो। अगर वो पिल जो है आप वो लेना भूल गया कोई, तो जिस वक्त याद आए उसी वक्त लें। ठीक है। और अगले दिन जो है वो वही वाला वक्त जो पहले से मुकर्रर है कि सुबह का टाइम है या दोपहर का, तो उसी टाइम पे लें। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर पूरा दिन ही रह जाता है, भूल जाते हैं, तो फिर अगले दिन एक के बजाय 2 पिल्स लेनी चाहिए। और हम्म। अगर किसी महीने में एक से ज्यादा दफा ऐसा हो गया कि पिल जो है वो पूरा दिन ही भूल गए और दूसरे दिन 2 लेना पड़ी हैं, तो साथ में फिर एडेड प्रोटेक्शन लाइक कॉन्डोम्स इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। और अगर ऐसे ही सिचुएशन हो जाती है और आप कॉन्डोम नहीं यूज करते साथ में, तो हाउ डू यू नो इफ यू आर प्रेग्नेंट व्हाइल ऑन द पिल? वो तो जब पीरियड्स मिस करेंगे तभी पता चलेगा, उससे पहले नहीं पता चल सकता। पीरियड्स मिस करने पे फिर वो ब्लड का टेस्ट जो होता है वो करवा लेना चाहिए, या घर में वो जो प्रेगनेंसी टेस्ट, होम प्रेगनेंसी टेस्ट मिलता है वो करवा लें, तब पता चलता है। सो वो ये है। ठीक है। एक और हमें क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द सेफेस्ट वे टू 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 टेक कॉन्ट्रसेप्शन? व्हाट मेथड ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन इज द सेफेस्ट? ये सारी जिसने मैंने बताए हैं वो सेफ हैं। जिस तरह से वो पिल भी सेफ है, कॉन्डोम्स भी सेफ हैं, कॉन्ट्रसेप्टिव डिवाइस भी सेफ है, वो चाहे वो हो हार्मोनल है या कॉपर टी है। और इसी तरह से इम्प्लांट्स हैं, इंजेक्शंस हैं, ये ऑल ऑफ दीज आर सेफ। वो किसी आम तौर पे डिजीज को एग्रेवेट नहीं करते, वो कोई डिजीज नई कॉज नहीं करते। और हाँ अलबत्ता वो जाहिर है कि इसमें किसी को लिवर डिजीज ना हो और इस तरह की कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो, तो अदरवाइज वो किसी भी बीमारी को एग्रेवेट आमतौर पे नहीं करते। तो अब प्लीज अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी फुल हिस्ट्री दें, एंड दे विल टेल यू द एग्जैक्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन दैट इज बेस्ट फॉर यू। वो हाँ नहीं, गायनोकोलॉजिस्ट जो है वो एग्जैक्ट मेथड एक नहीं बताएंगे। गायनोकोलॉजिस्ट पे लाजिम है कि वो मुख्तलिफ मेथड्स जो हैं वो उनको एक्सप्लेन करें, हम्म। एंड दे अलाउ द कपल टू चूज अ मेथड। उसके बारे में फिर डिटेल मजीद जो है उसको कैसे एग्जैक्ट। लेना है, क्या करना है, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो उनको बताए जाएं फिर। ठीक है। सो एसेंशियली दिस इज अ चॉइस ऑफ द कपल। ठीक है. So the last question that we have that will end this question and answer session is, what are the religious views on contraception and family planning? जहां तक मुझे मालूम है इस्लाम में इसकी ममानियत नहीं है, कैथोलिसिज्म में है, वो रोमन कैथोलिक्स जो है इसको वो नहीं करते। इस्लाम में इसकी ममानियत नहीं है और तभी इसीलिए इस्तेमाल हो रहा है। और ये वाली चीज जो है इसको मैंने तो कभी इसके बारे में इसके अगेंस्ट कोई किसी आलिम का वो बयान मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है. Okay, thank you so much, Dr. Farrukh. Are there anything else that you wanted to cover जो हमने इसमें नहीं डिस्कस किया? हाँ मैंने वो एक अपनी प्रेजेंटेशन सी थी उसकी मैंने रखी हुई थी कुछ स्लाइड्स वो दिखाने के लिए, हम्म. लेकिन वो उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक. लेकिन ये हमारे लिए सबके लिए एक अभी भी मैं कहूँगा लम्हा फिक्रिया है कि अभी भी अगर हम इसके ऊपर अमल करना शुरू करें तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी देर से पता चलेंगे, लेकिन होंगे कुछ ना कुछ। जिस तरह से आजकल खबरों में आ रहा है कि जापान को बड़ी तशवीश हो रही है, इवन चाइना को तशवीश हो रही है कि हम्म. जापान में ओल्डर एज पॉपुलेशन जो है बड़ी बढ़ रही है और यंगर उनकी आ नहीं रही, तो वो वेज एंड मीन्स वो ढूंढ रहे हैं जिससे वो पॉपुलेशन नहीं वो जरा शुरू करें कि ज्यादा करना शुरू करें, क्योंकि उनके पास फिर वर्क फोर्स की कमी हो जाएगी। हम्म. हमारे यहाँ उससे मामला बिल्कुल उलट है। हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट और वो इतना ज्यादा है, हमारे यहाँ यूथ बल्ज जो है वो ज्यादा है इस वक्त। सो इसलिए हमें एग्जैक्टली वो करना चाहिए जो चाइना ने आज से 40 साल पहले किया था। तो वो उस तरीके से नहीं करना चाहिए, और वो नहीं है, वो उसको कोई भी एंडोर्स नहीं करेगा कि उस किस्म की पाबंदी लगाई जाए। लेकिन
जहाँ तक हो सके हमें ये तालीम भी, तरगीब भी देना चाहिए, और लोगों को मालूम होना चाहिए कि कॉन्ट्रसेप्शन क्या है, इसकी क्या अफादियत है, और इसके साथ बहुत सारी जो मिथ्स हैं जो एसोसिएटेड हैं, वो एक फर्जी किस्म की चीज़ें हैं, उसमें कोई हकीकत ऐसी नहीं है। और उसके बारे में अगर कोई शकूक व शुबहात हैं तो ज़रूर किसी प्रोफेशनल के साथ जाके बात करें, और अपने जो वो ऐसी चीज़ें उनको उनकी क्लैरिफिकेशन उनसे ले लें। एक और मुझे सवाल अभी याद आया है जो आई थिंक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन. व्हाट डू यू थिंक द मेल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इन दिस सिचुएशन? ये हमेशा आप बहुत ही अहम सवाल है। अ, उसका मैं थोड़ा सा आपको एक मैं और एंगल से आपको बताऊं। कल मैंने एक सिजेरियन सेक्शन किया अपनी पेशेंट का। उसके पहले दो बच्चे थे, पहले भी दो सिजेरियन सेक्शन थे। और आमतौर पे हम सिजेरियन सेक्शन करने के बाद हम अपने हॉस्पिटल में 24 घंटे उनको पोस्ट ऑपरेटिव एरिया या रिकवरी एरिया वहां पे रखते हैं, और 24 घंटे के बाद फिर कमरे में उनको भेजा जाता है। तो उस लड़की ने मुझे सुबह से ही, ऑपरेशन से पहले ही कहा था कि जी आपने मुझे शाम को कमरे में भेज देना, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो बहुत मुझे मिस करता है, तो आई वॉन्ट टू बी विद द सन। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने उनको कल शाम को कमरे में भेज दिया। अब सुबह मैं जब गया राउंड पे, तो उनके दरवाजा खटखटाया खटखटाया, तीसरी दफा चौथी दफा खटखटाया, तो दरवाजा खुला। और वो जो बेड था मदर का, उसके साथ सोफा था, सोफे पे एक बच्चा लेटा हुआ था, और मदर जो थी वो अपने बेड पे डायगनली लेटी हुई थी, और उसके तकिए के ऊपर एक छोटी बच्ची और लेटी हुई थी, उस मदर को भी अभी वो। तो मैंने कहा ये क्या? कहने लगी कि जी इसी तरह से मैंने बच्चे संभालने थे। तो मैंने कहा तुम्हारा मियाँ किधर है? कि वो तो उसको सोना था, तो वो तो घर चला गया रात को। तो मैंने कहा तुम मुझे पहले बताती तो मैं तुम्हें बिल्कुल कमरे में ना भेजता। आदमी की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आज का दिन तो तुम्हें, जिस दिन पहला ऑपरेशन का दिन है, उस दिन तो तुम्हें चैन की नींद और आराम तो कम से कम मिलता ना, कि ये तुम एक तो ऑपरेशन का मसला। और मैंने कहा ये तो तुम्हारे खामन ने बड़ी ज्यादती की तुम्हारे साथ। तो ये वाली मैं ये इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा, प्रेगनेंसी होना, बच्चा पैदा करना, बच्चे की परवरिश करना और उसकी देखभाल करना, ये दोनों का फर्ज है और बराबर का फर्ज है। और उसके दौरान बल्कि ये जब बच्चा पैदा करने की के दिनों की बात है, तो उस दौरान में खामन को सपोर्ट देना, खामन को उसकी हेल्प करना, घर के कामकाज में, बच्चे की देखभाल में। और इसीलिए पैटर्नल लीव्स, पैटर्निटी लीव्स जो है, पैटर्निटी लीव भी आना शुरू हो गई ना, अब तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया। तो वो उसकी जिम्मेदारी साथ साथ में है। मर्द का काम सिर्फ प्रेगनेंसी कॉज करना ही नहीं है, उस प्रेगनेंसी के कॉन्सिक्वेंसेस को शोल्डर करना, उसको बराबर में उसके शरीक होना, और अपनी बीवी का ख्याल करना, उसकी ज़रूरियात का ख्याल करना, उसकी सेहत का ख्याल करना, ये देखना कि वो सही जा रही है, क्योंकि ये उन दोनों का, बच्चे का मसला है। माँ की सेहत अगर ठीक होगी तो बच्चे की सेहत भी ठीक होगी। आम तौर पे ये मकूला जो है वो सही जाता है, इसमें एक्सेप्शंस होंगी लेकिन वो सही जाता है। और वो इसलिए जो आदमी है उसकी जिम्मेदारी उस वक्त से बनती, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर भी उसके साथ कई दफा रात को उसको भी उठ के नैपीस चेंज करने की जरूरत होगी, उसको भी वो भी बॉटल बना के बच्चे को दूध की दे सकता है। सो ये वाली चीजें जो हैं वो, ताकि माँ का आराम जो है वो भी, उसको भी नींद मिले, और वो ये सारी चीजें हैं। तो आदमी का पूरा पूरा है इसमें। हाँ, जहां तक कॉन्ट्रसेप्शन का है, उसमें वो फिजियोलॉजी ऐसी है कि आदमियों, अभी आजकल भी रिसर्च हो रही है, डेवलप हो रहा है कुछ, लेकिन अगर देखा जाए कि जी वो अल्टीमेटली अगर वो नसबंदी जिस तरह से होती है, तो वो खवातीन की ही ज्यादा होती है, ओवरवेलमिंगली होती है। और आदमियों की नसबंदी जो है वो 1% से भी कम होती है, हालांकि उनकी भी हो सकती है।
और उसके भी कोई रेजिडुअल इफेक्ट अदरवाइज कोई नहीं होंगे, सवाई ये कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, लेकिन आदमी उसके लिए तैयार नहीं होते। सो देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट कि ये जो है इस ये वाली एजुकेशन जो है वो आदमियों की भी उसी तरह से होनी चाहिए। फैमिली जो है वो सिर्फ औरत औरत मरकज है उसका, मैं तो कहूँगा औरत मरकज है। आदमी जिस वक्त उसको सूट करता है वो उसको वो मरकज बन जाता है, और अदरवाइज वो उसको अपने आराम की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है, साथ साथ एक ही गाड़ी के दोनों पहिए बराबर बराबर ही चलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर फरूक। आई होप आप